سلیکٹڈ وزیر اعظم بیٹھے ہیں آج 3.5 مہینے بعد تشریف لائے, ان کو یاد آ گئی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج انہی کی جو اپنی منطق تھی اس کے اوپر وزیر اعظم کو پہلے استعفیٰ دینا چاہیے اور اس کے بعد بزدار کو بعد میں استعفیٰ دینا چاہیے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے وعدے کے مطابق ساہیوال میں پولیس کی جانب سے کیے گئے قتل عام کی رپورٹ آ تو گئی ہے مگر وہ مکمل بالکل نہیں ہے. فائنل رپورٹ آنے میں ابھی وقت لگے گا. 72 گھنٹوں میں بننے والی ابتدائی رپورٹ میں وہی باتیں تھیں جو پورا پاکستان ڈے 1 سے جانتا تھا. عرصے دراز سے معصوم لوگوں کو دہشت گرد ڈکلیئر کر کے غائب کر دینے یا قتل کر دینے کا ڈرامہ اس بار بالکل فلاپ ہو گیا ہے. ابتدائی رپورٹ بنانے والے بھی کار میں موجود خلیل صاحب اور ان کی فیملی کو بے گناہ ڈکلیئر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. ابتدائی رپورٹ کے مطابق آپریشن میں ملوث افسران معصوم خاندان کے قتل عام کے براہ راست ذمہ دار ہیں. اسی ابتدائی رپورٹ کے مطابق کار میں موجود ذیشان کا تعلق دہشت گردوں سے جوڑنے کے لیے ابھی مزید وقت کی ضرورت ہے. ناظرین, المیہ یہ ہے کہ جو ادارے واقعے کے 4 دن بعد بھی ذیشان کا تعلق دہشت گردوں سے جوڑنے کے لیے مزید وقت مانگ رہے ہیں, وہی ادارے ٹھیک 4 روز پہلے اسی ذیشان کو دہشت گرد مان کر قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے. ابتدائی رپورٹ کے مطابق آپریشن میں ملوث افسران کے خلاف مقدمہ درج کر کے عدالت پیش کیا جائے گا اور چند بڑے پولیس افسران کو عہدوں سے ہٹا کر وفاقی حکومت رپورٹ کرنے کا کہا گیا ہے. ناظرین, رپورٹ آ تو گئی ہے مگر سوال اپنی جگہ بالکل موجود ہیں. وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کے مطابق آپریشن 100% درست تھا, تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ خلیل اینڈ فیملی کا قتل 100% غلط کیسے ہے؟ اگر آپریشن انٹیلیجنٹ بیس تھا تو غلط معلومات دینے والا کون تھا؟ سوال اٹھتا ہے کہ اگر آپریشن میں ملوث افسران کے علاوہ پنجاب کے چند بڑے افسران کو صوبہ بدر کیا گیا تو ان کا گناہ کیا تھا؟ اگر وہ اس قتل عام میں براہ راست ملوث تھے تو محض تبادلہ کیوں؟ وزیر قانون راجہ بشارت کے مطابق کار ڈرائیور ذیشان سے متعلق وہ صحافیوں کو بند کمرے میں بریف کریں گے. تو ناظرین, یہاں سوال اٹھتا ہے کہ جس شخص کو دن دہاڑے معصوم بچوں کے سامنے قتل کیا گیا ہو اس سے متعلق تفصیلات بند کمرے میں کیوں؟ پاکستان کے اداروں سے متعلق سوال اٹھ رہے ہیں کہ ملک کو اپنی جاگیر سمجھنے والوں کی پالیسی آخر کیا ہے؟ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے کہ کار ڈرائیور دہشت گرد تھا تو نہتے دہشت گردوں کا بھی قتل عام کیوں؟ مرنے والوں کے گھر والے سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر بھارتی جاسوس گلبھوشن جادو زندہ گرفتار ہو سکتا ہے تو مشتبہ نہتہ دہشت گرد ذیشان کیوں نہیں؟ سوال اٹھ رہا ہے کہ اگر دہشت گردوں کی ساتھی نورین لغاری اور دہشت گردوں کے ترجمان احسان اللہ احسان کو گرفتار کر کے انہیں بھرپور زندگی کی طرف لوٹنے کا موقع دیا جا سکتا ہے تو وہی موقع ننھے بچوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے مشتبہ شخص ذیشان کو کیوں نہیں؟ السلام علیکم, وارم ویلکم ٹو دا شو. آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. میں ہوں بینر سلیم. میرے ساتھ آج کے شو میں بنی ہوں گی مسرت چیمہ صاحبہ, پاکستان تحریک انصاف کا ان کا تعلق ہے, سٹنگ ایم پی ہیں, ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کر لیں گی. رومینہ خورشید عالم صاحبہ PMLN سے, ان کا تعلق ہے, اسلام آباد اسٹوڈیو سے میرے ساتھ بنی ہوئی ہے. السلام علیکم, وارم ویلکم. سینیٹر سحر کامران صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے, ان کا تعلق ہے, وہ بھی اسلام آباد اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ بنی ہوئی ہیں. اس سے پہلے میری خواہش تھی کہ میں مسرت چیمہ صاحبہ سے شو کا آغاز کروں, لیکن کیونکہ ابھی تک وہ پہنچی نہیں ہے تو لیٹ می گو ٹو دا اپوزیشن بینچز. سب سے پہلے رومینہ خورشید عالم صاحبہ, ساہیوال واقعے کے اوپر obviously میں آپ کی اپڈیٹ چاہوں گی, لیکن ابھی میں نے پروگرام کے آغاز میں ایک شارٹ سنوایا. آج شہباز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کے سامنے ان کے منہ پر انسائڈ دا پارلیمنٹ کہا کہ آپ کو استعفیٰ کی شروعات کرنی چاہیے, آپ کو استعفیٰ دینا چاہیے, اور اس کے بعد آپ کے بعد عثمان بزدار صاحب جو ہے وہ استعفیٰ دے, کیونکہ یہ روایت آپ نے شروع کی تھی. آپ یہ مانگ کرتے تھے کہ پہلے اوپر کی طرف سے نیچے استعفیٰ آنا چاہیے. میں آپ سے پھر یہ پوچھنا چاہوں گی, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیڈر کی طرف سے جو ڈیمانڈ کی گئی ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے بالکل ٹھیک اور جسٹیفائڈ ہے؟ ڈو یو ریئلی تھنک سو کہ جو کچھ ہوا وہ عمران خان صاحب کے کہنے پر یا ان کے آرڈر پر ہوا؟ کیا ماڈل ٹاؤن کے واقعے کے اوپر آپ لوگوں نے, آپ کی ہائر لیڈرشپ نے کیا استعفیٰ دیا تھا؟ سب سے پہلے بہت شکریہ بینش اپنے پروگرام میں دعوت دینے کا. بات یہ ہے کہ آپ نے جو کہا کہ لیڈرشپ نے جو بات کی, شہباز شریف صاحب نے بالکل 100% بات کی, کیونکہ آج کی جو تقریریں تھیں, آج کا جو حالات تھے, اور آپ نے سنا, پوری عوام نے سنا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو گفتگو کر رہے تھے, جس طرح سے وہ بریف کر رہے تھے, وہی مذائقہ خیز تھا. کیونکہ یہ تمام تر سلسلہ, چاہے ماڈل ٹاؤن کی آپ بات لے لیں, یہ روایت کس نے شروع کی. تو آج وہ وقت ہے کہ جو آپ نے منہ سے نکالی ہوئی باتیں تھیں ان کو
कुछ तो साबित करें। लेकिन चूंकि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है या तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो रहते ही 3 अलिफ के ऊपर हैं, क्योंकि उनको हर वक्त पार्लियामेंट में ये लगता था कि वो इंसाफ भी दे सकते हैं, अलिफ से उनका इंसाफ और क्या कहना चाहिए अरमान और इंतकाम, ये 3 चीज़ों के बीच में ही वो चलते हैं। इसीलिए मेरे ख्याल में जो आज हुआ वो इंतहाई अलमनाक वाक़या जो साहिवाल का हुआ, उसके ऊपर पूरी कौम जो है वो ना सिर्फ परेशान है और लोग खौफजदा भी हैं। लेकिन उसके ऊपर आपने जो सीरियसनेस है वो तो आपने प्राइम मिनिस्टर की देख ही ली कि ट्वीट के थ्रू वो बात कर रहे थे, वो तो बात करना भी पसंद नहीं करते। आज ना जाने कैसे कुफर खुदा खुदा करके कुफर टूटा और जनाब जो है वो पार्लियामेंट में तशरीफ लेकर आए। लेकिन उसके बावजूद आप मेरी बहन है, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, लेकिन आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू रुमीना, नवाज शरीफ साहब भी इतना ऑफन पार्लियामेंट में नहीं आते थे। ये बिल्कुल जस्टिफिकेशन नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में आना चाहिए, लेकिन जो मांग आपने की, कमिंग बैक टू इट, आई नो साहिवाल का वाकया बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन जो मांग आपने की इस्तीफे की, क्या वो जस्टिफाइड है रुमीना? वो बिल्कुल वो जस्टिफाइड है, इसलिए कि आपको भी याद है और आज शहबाज शरीफ साहब ने भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो ये बात कही कि राना सनाउल्लाह साहब ने उन लोगों ने जो है अपने इस्तीफा वॉलंटियर किए थे। और दूसरी बात आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब नहीं आते थे, और मैं आपकी बहन हूँ, शुक्रिया बहन कहने के लिए और दोस्त कहने के लिए भी, लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि इन्होंने तो बड़े बड़े दावे किए थे। किसने कहा था कि पहले दिन आके कहें कि हर बुध को जो है वो सेशन के मैं आके सवालों के जवाब दूंगा? तो लिहाजा बात करने से पहले सोचना जरूर चाहिए कि आप बात को बाद में आप अपनी बात को जस्टिफाई कैसे करेंगे। और एक और चीज़, आज पार्लियामेंट में यूं लग रहा था जैसे तकरीर कम, और वो जैसे अनफॉर्चुनेटली मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन खुद खवातीन होती है ना जो रिश्तेदार होते हैं जिन्होंने नोक झोंक करनी होती है और लड़ाइयाँ झगड़े करने होते हैं कि तूने ये किया तूने ये किया, आज वही मंजर पेश हो रहा था। वो नए पाकिस्तान का पढ़ा लिखा क्राउड या पढ़ी लिखी गुफ्तगू कहीं से भी ना नजर आ रही थी और ना ही महसूस हो रही थी। ओके, अस्सलाम वालेकुम सहर कामरान साहिबा, वार्म वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो एक चीज़ कि वो जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का नारा जो पहले दिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी फर्स्ट स्पीच में किया था इमरान खान साहब को वेलकम और कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए, आज वो नारा शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा लगाया है। एंड कमिंग इट फ्रॉम शहबाज शरीफ माउथ इज डेफिनेटली अ बिग अचीवमेंट फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ओके जी, बात ये कर ली। अब एज ए न्यूट्रल पार्टी टू इट, क्या आप समझती हैं कि जो शहबाज शरीफ ने मुतालबा किया है इमरान खान और उस्मान बुज़दार के इस्तीफे का कि वो अपनी कुर्सियों से मुस्तफ़ी हो जाए, अपनी कुर्सियां छोड़ दें, बिल्कुल जायज़ है? पॉलिटिक्स को एक साइड पर रख के मैडम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीनी, सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि जिस वाक़े पे हम बात कर रहे हैं उस पर सबसे पहले तो आके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि हम एक ऐसे स्टेट का खाका पेश किया था इमरान खान साहब ने जिसको वो तशबीह दे रहे थे रियासत मदीना से। अगर ये रियासत मदीना से तशबीह देने वाले प्राइम मिनिस्टर अपनी पूरी कौम से माफ़ी नहीं मांगते तो फिर मैं कहती हूँ कि उनको खुद इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। बात सिर्फ इस्तीफ़े की नहीं है, जितना अलमनाक जितना अफसोसनाक वाक़या हुआ, एक मैं कहती हूँ कि वो सानेहा था, वो सानेहे से अलमिया बना और अलमिये से माशरती नासूर बन गया। हुकूमत की जो नाअहली सामने आई है इस पूरे वाक़े के अंदर, तो मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले जिस तरीके से वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद ने आके कलाबे मिलाने शुरू किए दहशत गर्दों को कत्ल करने के, तो मैं वो दहशत गर्द देखती रही कि एक खातून, उनके शौहर, उनकी 13 साला बच्ची और गाड़ी चलाने वाला शख्स और बच जाने वाले 8 साला और 5 साला और एक छोटी बच्ची मासूम दहशतगर्द। देखें, ये जो ना बहुत एक सवाल है। आज की रियासत मदीना पे भी जो तश्कील दी है सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, बिल्कुल सही कहा था पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कि ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, ये लाडले हैं, इनको लाया गया है, लेकिन लाने वाले भी मैं कहती हूँ उनको बड़ी उम्मीदों से लाए थे। इन्होंने शायद उन उम्मीदों पे भी पानी फेर दिया, क्योंकि जिस किस्म के हालात मुल्क में आज हैं, इन्होंने तो शायद खुदकुशी नहीं की, लेकिन पाकिस्तान के अवाम आज तिल तिल मरने पे मजबूर है। तो बहुत अफसोसनाक वाक़या, और उसके बाद जिस तरह के हालात हुए कि ज़बरदस्ती उनको दहशतगर्द करार देने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। JIT को हमने पहले दिन मुस्तरद किया, लेकिन सहर ऐसे बहुत से वाक़यात सिंध में, कराची में हो चुके हैं।
जब से ये वाकया हुआ है मैं हर वक्त पीपल्स पार्टी के लोगों को वो मनाजिर, वो बातें, वो गुफ्तगू, राव अनवार साहब की चाहे मैं बात कर लूँ, चाहे मैं मकसूद की बात कर लूँ, चाहे किसी की भी, मतलब नकीब की आप बात कर लें, ऐसे वाकयात सिंध में भी हुए। वो अलग बात है कि 2 wrongs they don't make a right, लेकिन आप भी थोड़ा हाथ हौला रखें ना। आप भी इनके साथ मुतालबा कर रहे हैं इस्तीफे का, तो फिर वहां से तो मुझे देखना चाहिए, तो सिंध से इस्तीफे सबसे पहले आने चाहिए। द नंबर ऑफ वाकयात, द सीरीज ऑफ इवेंट्स जो कि सिंध में होते रहे हैं। देखिए बीने, फ़र्क पता है क्या है? फ़र्क ये है कि हम ये कह रहे हैं कि जी ये वाक़यात पहले हुए, तो क्या आगे भी हम इसको जस्टिफाई करते रहेंगे कि ये वाक़यात होते रहेंगे? राव अनवार का केस जो है वो आला अदालत में है। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये के फ़राइज़ है कि वो किस तरह से इंसाफ करे, और ऐसा इंसाफ करे कि दोबारा जिसके हाथ में बंदूक हो वो ताकत का महवर ना बन जाए। हमारे यहाँ ये स्टैंडर्ड ना हो कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो कानून को अपने हाथ में ले लें। आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी एहसानुल्लाह एहसान की, कुलभूषण यादव की। यानी आप जो है वॉर क्राइम है कि आप जो है इस तरीके से अपने दुश्मन को भी पकड़ के मार नहीं सकते। फ्री ट्रायल बिल्कुल जो है पूरी दुनिया में इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज के मुताबिक है, लेकिन ये कहना कि आपने देखा एक मिनट बस फिनिश इसको खत्म करूंगी। आपने देखा, आपको पता चला कि दहशतगर्द है और आपने गोलियों से भून डाला। मैं कहती हूँ कि ये अगर वो दहशतगर्द भी होते तो ये कत्ल था, ये मावराए अदालत कत्ल था। खैर सवाल बहुत हैं, इतने ज्यादा सवाल हैं, जवाब खत्म हो जाएंगे मगर सवालों का सिलसिला नहीं खत्म होगा। आई वुड रियली लाइक टू वेलकम फॉर द टाइमिंग मुसर्रत चीमा साहिबा, एमपी हैं सिटिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम। यू जस्ट जॉइंड इन अ लिटिल लेट। आपकी दोनों जो बहनें हैं काउंटर पार्ट्स, उन्होंने काफ़ी गोलाबारी की है, लफ्जी गोलाबारी, अच्छी मतलब कोई बिलो द बेल्ट नहीं, लेकिन उनका यही मानना है कि इस्तीफा आना चाहिए इमरान खान साहब का। उनका यही मानना है कि उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफा आना चाहिए। इसको आप रिस्पॉन्ड करें, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल ले लीजिए। कल इसी टाइम पर जब मैं शो कर रही थी तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्योंकि एक इजलास चल रहा था जिसके अंदर इब्तदाई रिपोर्ट आई। मुकम्मल रिपोर्ट आज तक नहीं आ सकी, 80 घंटे से ज़्यादा हो गए, 90-100 घंटे के करीब तकरीबन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक मुकम्मल रिपोर्ट नहीं है। लेकिन जितनी इतलात मिली हैं, यू नो व्हाट इट इज़। तो आप समझती हैं कि इंसाफ हो गया? आप लोगों ने कुछ अफसरान को मुअत्तल किया, कुछ को आप लोगों ने सूबा बदर कर दिया। दिस इज कॉल्ड इंसाफ। ये वो इंसाफ है जिसके बारे में खान साहब, शहरियार आफरीदी साहब कह रहे थे, ओहो हो रिपोर्ट सामने आ जाए तो हम ऐसा इंसाफ कर देंगे कि पूरी दुनिया देखेगी कि कैसा इंसाफ करना है। $1 मिलियन क्वेश्चन अपनी जगह पे बरकरार है कि जो फैमिली है खलील की और खलील, उसका जो डैमेज हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? आज आप मुझे इसका जवाब दे दें तो मेरे ख्याल से मैं गनीमत जानूंगी। अच्छा बिनिश, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, बात यह है कि इंसाफ, अभी उस इंसाफ का प्रोसेस शुरू हुआ है। बात मुझे ये बताएं कि एक गलती हुई, गलती नहीं है इस जुल्म अजीम। अगर इन्होंने इतना बड़ा जुल्म जो किया जिसकी तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती, ठीक है, हुआ, हमने कोई डिफेंड तो नहीं किया और हमने ये तो नहीं कहा कि ये खलील साहब की फैमिली भी, ये तो जितना मर्जी इंसाफ हो जाए वो फैमिली, वो बच्चे तो कॉम्पनसेट होने ही नहीं है, ये तो फॉर श्योर है। उनके साथ जो हो गया है वो इरिवर्सिबल है। इसकी जिम्मेदारी आप किस पे डालते हैं? अच्छा, इसकी जिम्मेदारी, ओह यस ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू टेल यू कि जिम्मेदारी इस मुल्क के, देखें ऑब्वियसली वो इदारा जिसमें वो नॉन प्रोफेशनल, वो जो लोग ट्रेंड नहीं थे, जिनको पता ही नहीं था कि अगर वाकई टेररिस्ट भी हों तो इस तरह से नहीं करना था, क्योंकि उसमें बच्चे थे, चाहे बच्चे टेररिस्ट के थे, सीटीडी ट्रेंड नहीं थी। अच्छा, सात इदारे जिन्होंने सारी अच्छा, मैं आप जो हकाइक में मबनी बात है मैं वही करूंगी। मैं गलत चीज को बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर रही। उसकी वजह ये कि मेरे अपने भी बच्चे हैं और हम रियलिटी बेस्ड बात करते हैं। शक नहीं है, अच्छा, आप भी मेरी बहन है, उस पे शक नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ क्लैरिटी चाह रही हूँ ना। क्लैरिटी कह रही है कि वो ट्रेंड नहीं थे, यानी कि मैं ये मानूं द सीटीडी वाज नॉट ट्रेन्ड टू डू दिस ऑपरेशन, जिनका सुबह दोपहर शाम यही है काम। भाई देखें, इस मुल्क में आपको क्या लगता है कि पुलिस ठीक है? पुलिस ट्रेंड है, जो पुलिस करती है, जो इनकाउंटर होते हैं, इसमें ये तो ना हक खून इसलिए सामने आ गया कि वो बच्चे बच गए। अगर ये बच्चे ना बचते तो शायद आज पिक्चर और होती, आप लोग सब लोगों के सामने, मेरे सामने, गवर्नमेंट के भी सामने। सो द पॉइंट इज कि इस मुल्क में ये सीटीडी का पहला और आखिरी गड़बड़ नहीं है जो उन्होंने की है। मसला ये है कि इस मुल्क में पुलिस या जो भी इदारे हैं जो फर्स्ट लाइन होती है प्रोटेक्शन की, उन्होंने कभी लोगों को प्रोटेक्ट किया ही नहीं,
ٹھیک ہے. ہم کیوں کہتے ہیں پولیس ریفارم, ہم کیوں کہتے ہیں ڈی پولیٹیسائز کیا جائے اداروں کو؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک آرڈر کرنے سے یا عثمان بزدار صاحب کے وہاں چلے جانے سے پھول پہ بحث ہو رہی ہے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی؟ یہ ایک دن میں ٹھیک کوئی نہیں ہونی, ان کو ٹھیک کرنا پڑنا ہے. اس کے لیے بھی یہ اپوزیشن یہ جو آج کہہ رہی ہے نا کہ جی عثمان بزدار استعفیٰ دے, وہ استعفیٰ کیوں دے؟ ان کو سیاست چھوڑ دینی چاہیے. میں وجہ بتاتی ہوں. پیپلز پارٹی ساری کو اب سنتی جائیے گا. مجھے بلاول اپنے ماموں کے قاتل ڈھونڈے کس نے؟ جب ان کی امی وزیر اعظم تھی تو میر مرتضیٰ بھٹو کا قتل کیسے ہوا, کیوں ہوا, کس نے کیا؟ اگلا میرا ان سے سوال ہے. ہم تو ان کا جو ہوا ہے نا, اس کے یہ میں کہتی ہوں اس ملک کے آنے والی نسلوں کے لیے اچھا ہو گیا ہے. کیوں ان 3 جو ناحق 4 لوگ مارے گئے ہیں, اچھا جو 4 ناحق لوگ مارے گئے ہیں نا, اب اس ملک میں ریفارمز ہوئے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. ہمیں جو بحث و مباحثہ ختم ہو گیا, نہیں ہم تو کر رہے ہیں نا, ہم تو کریں گے, کس نے کہا ہم نے نہیں کرنی. بٹ دا پوائنٹ از کہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ بینظیر بھٹو کا قتل ہو جاتا ہے, اس کے بعد ابا جی جو بلاول کے ہیں وہ آ کے صدر بن جاتے ہیں اس ملک کے, انہی کا وزیر اعظم. انہوں نے آج تک ان کے تو قاتل ڈھونڈے نہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے نہیں ڈھونڈنے, ہم نے ڈھونڈنے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ استعفے وہ لوگ دیں گے جو کلپریٹس ہیں. یہ کوئی قاتل اعلیٰ کی طرح بزدار صاحب کے آرڈرز پہ نہیں ہوا. یہ کوئی عمران خان صاحب نے انسٹرکشنز نہیں دی کہ وہ گاڑی جا رہی ہو جا کے انہیں بھون دو اور اس کے بعد ہم ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے, جس طرح یہ لوگ آ کے پریس کانفرنس کرتے تھے اور کورٹس کے آرڈرز کے بغیر انہوں نے FIR تک نہیں کی تھی سانیہ ماڈل ٹاؤن میں. یہ اس طرح کی ایگزامپلز, یہ بھاشن ہمیں نہ دیں, اس ملک کے عوام کو بھی نہ دیں. خلیل کے بچوں کا جتنا دکھ عثمان بزدار کو ہے, جتنا عمران خان صاحب کو, جتنا مجھے, ان کو بالکل بھی نہیں ہے. یہ ان لاشوں پہ بھی سیاست کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا انہوں نے آج کے دن تک کوئی پولیس ریفارمز کی؟ ہماری گورنمنٹ تو ابھی, ہم نے آج بجٹ کا رونا رو رہے تھے, آئے نا بات کریں میرے سے بجٹ کے بارے میں. یہ منی بجٹ لے کے آ رہی ہے, فلان کریں. ہم دیکھیں, ہم یہاں پہ رول کرنے نہیں آئے, ہم اس ملک کو ٹھیک کرنے آئے ہیں اور وہ ہم نے کرنا ہے. لیکن کچھ چیزوں کے لیے امیجیٹلی چیزیں ٹھیک ہونی ہے. جیسے یہ انصاف کی بات ہے, یہ امیجیٹ ہے. اس پہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم 6 مہینے لیں گے, ہم سال لیں گے. ریفارمز پہ 6 مہینے سال لگیں گے, انصاف فوری ملے گا. یہ کان کو ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں, استعفے تو ان کو دینے چاہیے. ان کو تو میں کہتی ہوں اگر ہمیں اس بات پہ ایک سیکنڈ لاسٹ تھنگ, اگر اس بات پہ عثمان بزدار کو اور عمران خان صاحب کو استعفیٰ دینا ہے تو ان کو تو سیاست ہی نہیں کرنی چاہیے. گھروں میں جا کے بیٹھے اپنی لیڈر جس کی بیسس پہ یہ آج آ کے اسمبلیوں میں یہ بھی سینیٹر بن کے بیٹھی ہیں, ان کے قاتل کے لیے ایک دن بھی انہوں نے کیا کیا ڈھونڈنے کے لیے؟ کون سی JIT بنائی؟ باہر سے لے کے آئے لوگوں کو, اور انصاف بینظیر کے قتل کا نہیں ہوا, اور میر مرتضیٰ بھٹو کو پولیس نے مارا تھا, اس کے بعد بھی کر رہا ہے, آج بھی انکاؤنٹر کرتا ہے. میں واپس آتی ہوں سہر آپ کے پاس اور آپ اس کو رسپونڈ کیجئے گا. بالکل میں آتی ہوں آپ کے پاس, مجھے ایک بریک لینا ہے, ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. رومینہ خورشید عالم اینڈ آف کورس سینیٹر سحر کامران صاحبہ ہمارے ساتھ بنی میں, وہ رسپانس لیں گی. اینڈ آف کورس مسرت چیمہ صاحبہ بھی ہیں. ایک بریک, ول بی بیک. ویلکم بیک جی. میرے پاس رومینہ خورشید عالم, سینیٹر سحر کامران صاحبہ, مسرت چیمہ صاحبہ موجود ہے. سینیٹر صاحبہ آپ رسپونڈ کرنا چاہتی ہیں, بس 1-1.5 منٹ میں پلیز رسپونڈ کیجئے کیونکہ پھر میں نے آگے بجٹ پہ بات کرنی ہے. پلیز اپنا رسپونڈ دے دیجئے. بینش, سب سے پہلے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس سہانے پہ, اس المیے پہ شاید کوئی سنجیدہ گفتگو ہوگی. میں یہ امید نہیں کرتی تھی کہ PTI آج بھی کنٹینر پہ کھڑی ہوگی اور they will stoop so low کہ وہ بات کریں گی میری شہید لیڈر کے بارے میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر اس وقت اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری آپ پہ تھی. یہ نہیں تھا کہ جو ہے وہ چیف منسٹر صاحب پھول گلدستہ لے جا کے پھولوں کا ان بچوں کو دے جن کے والدین کو ان کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا گیا صفاقی کے ساتھ. یہ نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا اس کا دفاع کیا؟ جی آپ کے وزیر اطلاعات نے دفاع کیا, آپ کے جو ہے گورنر نے دفاع کیا, آپ کے چیف منسٹر نے دفاع کیا, آپ کے جو ہے صوبائی وزیر قانون نے دفاع کیا. دیکھیں, اور اب تک کر رہے ہیں. ابھی ایک کوشش جاری ہے کہ کسی طریقے سے ذیشان کو بھی دہشت گرد جو ہے وہ ثابت کر دیا جائے. دیکھیں, حکومت وقت پر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ کا یہ کہنا کہ یہ کیا ہوا اور کس کے قاتل نہیں پکڑے گئے, یہ آپ درد ان کا سمجھ سکتے ہیں جن کا نقصان ہوا ہو. ان بچوں کو واقعی آپ لوگ سیاست کر رہے ہیں کہ
करने पे इस्तीफा दे, एक तरफ हम 14 कत्ल करने पे इस्तीफा मांगते थे और आप कि मुसर्रत साहिबा उनकी पार्टी ने फिर भी 4 एहलकार जो है घर भेज दिए हैं, सूबा बदर कर दिए हैं। अफसोस है मुराद अली शाह साहब ने तो कुछ भी नहीं किया अभी तक। आप बताएं ना राहुल वार का क्या किया, जरा बताएं ना। आज जो लाइव एनकाउंटर होना चाहिए था कि आप जो है किस किस्म की गुफ्तगू कर रही हैं, यानी एक सेनेटर साहब हो गया, मगर दिस इज अ नेवर एंडिंग डिबेट। हमारी आंखें खुली और इस आने को हम इंशाल्लाह फिक्स करेंगे। व्हाट अबाउट राहुल वार, किधर है वो, कहाँ भेजा हुआ है, किस मुल्क में? जरदारी साहब ने किस एयरपोर्ट पे उसको कहाँ से कहाँ भेजा, लोग जानते हैं। क्या हुआ आप लोग को ये, और मीर मुर्तजा भुट्टो बेचारा, उसको सड़क के ऊपर पुलिस वालों ने मार दिया। भेजो मैं आपको फोटो, बिनिश को मैं देती हूँ, वो चलाए। उस वक्त वजीर आजम कौन थी? उनकी सगी बहन। अफराद के हाथों में हथियार दे के उनको मुजरिम साबित कर दे। अगर आपका बस चलता तो हम क्यों करें? हम नहीं करेंगे, हम कोई ऑल राइट, आ गया आपका रिस्पॉन्ड आ गया। सेनेटर साहिबा आ गया आपका रिस्पॉन्ड, आपका रिस्पॉन्ड आ गया। आप अफसोस मुझे आप पे है कि जी उस्मान बुज़दार ने चूंकि बेड पे फूल रखे थे वो रिजाइन कर दे, है ना, और राव नवाज ने चूंकि आई गॉट द पॉइंट। मुसर्रत जी मसला प्लीज, मेरे पास वक्त कम है, आप उनको ताज पहनाएं, यही तो है। मेरे पास वक्त कम है, मुझे आगे बढ़ना है। रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा, कल मेरे पास भी पीएमएलएन की रिप्रेजेंटेशन आई थी। शहर आई गॉट योर पॉइंट, प्लीज आई हैव टू मूव ऑन। बीबी पानी 2 बच्चों को जो भूख से मर रहे हैं, उन बच्चों का ख्याल करो, इन बच्चों को हम संभालेंगे। रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा, कल सिद्दीक फारूक साहब यहाँ पर मौजूद थे और कल भी मैंने सवाल किया, आज मैं वो सवाल करने पर दोबारा मजबूर हो गई हूं। पोल्यूटेड जो लोग थे सियासत की, मैं कहती हूँ गाली उनका सारे लोगों को पता है। अच्छा गाइस प्लीज लेट मी आस्क सम क्वेश्चन। पहली बात तो बिनेश ये है कि बड़े अफसोस के साथ मैंने सवाल मुकम्मल नहीं किया। रुमीना अपना मौकफ बयान करे। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। गुजारिश करूंगी कि अगर अपने अपनी बारी पे बात करें, हमने उनकी भी बात सुनी। ओके रुमीना, मेरा सवाल ले लीजिए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, मेरा सवाल ले लीजिए। कल भी मैंने सवाल किया, आज भी मैं सवाल करने पे कंपेल हो चुकी हूँ क्योंकि कल भी मरियम नवाज साहिबा ने ट्विटर के जरिए हमें अपडेट किया कि किस तरह से उनको अपने वालिद साहब की तबीयत के बारे में पूरी डिटेल्स मालूम नहीं है और मीडिया के जरिए उनको मालूम चल रही हैं। और आज भी उन्होंने कुछ इसी किस्म की सिमिलर ट्वीट की कि जो बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स का बनाया गवर्नमेंट ने, उनके थ्रू टेलीविजन उनको पता चला कि जी क्या डेवलपमेंट्स चल रही हैं नवाज शरीफ साहब की सेहत को लेकर के, बिकॉज डेफिनेटली ही इज़ बिहाइंड द बार्स। मेरा एक सादा सा सवाल है, मरियम नवाज साहिबा जिनकी वजह से आज आप सब लोग हैं, नवाज शरीफ साहब जिनकी वजह से पीएमएलएन है, आज मरियम अकेली खड़ी हैं, नवाज शरीफ के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। इतने बुरे हालात हो गए हैं असेंबली के अंदर या किसी भी फोरम के ऊपर, रुमीना खुर्शीद आलम या बाकी जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज के जो सीनियर रिप्रेजेंटेटिव या इवन जूनियर रिप्रेजेंटेटिव, वो आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? अगर इतना बुरा वक्त आ गया कि वो 3 बार के मुंतखब प्राइम मिनिस्टर हैं और उनको किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं दी जा रही, यहाँ तक बात पहुँच गई है कि एक डिफेंस एनालिस्ट हैं असद मुनीर साहब, वेरी ऑनरेबल, उन्होंने ट्विटर के ऊपर लिखा कि भाई वो 3 बार मुंतखब प्राइम मिनिस्टर है तो उनका ख्याल करना चाहिए। तो मरियम नवाज साहिबा ने ट्विटर के ऊपर उनका शुक्रिया अदा किया और मरियम नवाज को असद मुनीर का शुक्रिया अदा करना पड़ा क्योंकि वो अपने आप को अकेला समझ रहे हैं और वो अकेली हैं क्योंकि उनके लिए, उनके बाप के लिए कोई आवाज ही नहीं उठा रहा। किधर है रुमीना खुर्शीद आलम आप? पहली बात तो ये है कि बिनेश आपने जो सवाल किया मैं उसका बिल्कुल जवाब दूंगी, लेकिन एक बात उससे पहले मैं ज़रूर कहूँगी और मैं गुजारिश करूँगी कि हमारी जो मोहतरम मुसर्रत साहिबा हैं वो इंटरप्ट नहीं करेंगी क्योंकि हर किसी को अपनी अपनी बात करने का हक पूरा हासिल है। बात हुई पुलिस रिफॉर्म्स की, तो हम तो 6 माह से इंतज़ार कर रहे हैं कि वो पुलिस रिफॉर्म्स जो KPK में हुए वो पंजाब में भी हो चुके होंगे। वाकई कोई इंटरवीन नहीं करता क्योंकि 3 दफ़ा IGs हमने बदल दिए, हम बिल्कुल इंटरवीन नहीं करते। कोई कहीं पे सियासत नहीं चलती, कहीं पे सिफारिश नहीं चलती, वो जो कुछ चल रहा है वो हम देख रहे हैं और खुदकश जैकेट्स और जो कुछ चल रहा है वो भी हम सारा कुछ देख रहे हैं और पूरी आवाम भी देख रही है। कोई फूलों पे सियासत नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, लेकिन बात तो ये है कि योर एक्शन स्पीक्स लाउडर। जो आपकी हरकतें हैं वो ज्यादा बोलती हैं कि आपको फूलों पे सियासत नहीं, आपकी तो सोच पे दे रहे हैं। आपका एक वजीर कह रहा है कि अगर वो साबित ना हुए तो हम उनको 2.5 करोड़ या 2 करोड़ देंगे। ये तो आपकी सोच का लेवल है। तो हम तो थे ही गलत लोग, हम तो पुराने लोग, गलत लोग, बुरे लोग। आप तो नए पाकिस्तान के लोग थे, आपने तो नई चीजें लानी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली निकाला आपने भी वही कूड़ा करकट सामने, वही इधर उधर के बचे कुचे हुए लोग जिनको आपने चलिए अब मेरा सवाल करके या उनकी रेनोवेशन करके डाल दी। अब आपके सवाल की बात है, बिल्कुल मरियम नवाज अकेली नहीं खड़ी। PMLN पूरी की पूरी जो N है वो नवाज शरीफ साहब ही हैं, वो हमेशा के उसके कायद
कायद मोहतरम भी हैं और पूरी की पूरी जमात उनके साथ खड़ी है और उसी तरह से हम तमाम तर लोग जो हैं वो खड़े हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है आप अगर देखें मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मरियम औरंगज़ेब ने भी बात की है, हम सब ने बात की है, शहबाज शरीफ साहब ने आज असेंबली में आकर ये बात नहीं की अपने बड़े भाई के लिए। रुमीना, वेरी सॉरी टू से, प्लीज लिसन टू मी एंड आई नीड अ वेरी क्विक फॉलो अप ऑन इट। इतना इंपॉर्टेंट सेशन था, इमरान खान साहब आज ऐवान में मौजूद थे। शहबाज शरीफ साहब को अपने बड़े भाई को दुख नहीं कहना चाहिए था कि ही इज अनवेल, हमें बताया नहीं जा रहा, फैमिली को नहीं बताया जा रहा। बीनिश साहिबा, आपके लिए एक ही बात कहूंगी कि तुम तो वक्त की धार से भी तेज निकले। जालिम वक्त ने तो एक धार मारी, जालिम तुम तो दो धारी तलवार से भी तेज निकले। अगर वो पार्लियामान में बात अपने भाई के लिए करते तो ये बात आ जाती कि ओहो अपने भाई का फिक्र पड़ गया, कौम भूल गई, साहिवाल भूल गया, ओहो ये हो गया। प्लीज आप लोगों को भी चाहिए कि थोड़ा सा जो है उस तरह से मेरे ख्याल में बिहेव करना चाहिए कि आज मैं आपको एक बात बता दूं, रुमीना अगर बैठी है तो आज अपनी क़यादत की वजह से बैठी है। हमारी तमाम तर लीडरशिप सीनियर और जूनियर अपनी पार्टी के कायदीन के साथ किस क़यादत की वजह से बैठी है? आज भी मौजूद रहेगी। कौन है क़यादत? जी कौन सी क़यादत? हमारी क़यादत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं। डेफिनेटली हमारी सीनियर लीडरशिप हमारे साथ मौजूद है और मरियम भी हमारी लीडर है और इसी तरह है। लेकिन एक बेटी आज के दिन के लिए मान ली आपकी बात रुमीना, वो रियासत से ना मांगे, रियासत जो सी है वो तो माँ है और माँ का किरदार तो हम देख ही रहे हैं, जो माँ उन बच्चों के साथ कर रही है वही माँ जो है वो उनके साथ। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द बजट, लेट्स टॉक अबाउट द बजट। माँ ने इनको बताया मॉडल टाउन में जो अम्मी जी ने किया था, आप पॉइंट स्कोरिंग ना करें, बजट 14 कत्ल, मुझे अलाउ करें आपसे बजट भी हो चुका, अब अगले मुझे अलाउ करें मैं बजट का इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे रुबीना कि हम एग्जांपल सेट करेंगे, डोंट यू वरी। अभी आप एग्जांपल सेट कर रहे हैं, बजट पे बजट लाके मुझे सारी चीजें नहीं करनी है। आप इस वक्त जो है एग्जांपल सेट कर रहे हैं बजट पे बजट लाके। एक बजट आया, उसके बाद दूसरा बजट आया और कहा ये जा रहा है, विच इज द मिनी बजट, और कहा ये जा रहा है कि करीब 2-3 महीने में एक और बजट आएगा एंड देन फाइनली एक और बजट आएगा। इस बजट में इतनी कोई तब्दीली तो आई नहीं, जो सीधा पॉइंट्स मैंने अभी जितने भी देखे हैं, टैक्सेस का वही रेशो है, हर इंपोर्टेड चीज जो है वो महंगी हो गई है, बिल्कुल वैसे जैसे इंपोर्टेड चीजें हमेशा की तरह महंगी होती हैं। ऐसा क्या डिफरेंट था इस बजट में? आप लोग को एक नया बजट, मिनी बजट लाने की क्या जरूरत पेश आई, पहले ये बताएं। अच्छा, पहले तो ये मैं बता दूं, ये बजट नहीं है, ये एक इस्लाहात का पैकेज है, राइट? इस्लाहात का पैकेज, हाँ ठीक है। इसमें हमने किया ये है कि आप ये देखें, आप ज़रा ये जो छोटे शादी हॉल है उनसे पूछें कि 20,000 से 5,000 टैक्स होना क्या उनको इसका फ़ायदा होगा कि नहीं। अभी ये बजट, ये इस्लाहात पैकेज अनाउंस करने से पहले तक की जो मैं स्पीचेस सुन रही थी सारी अपोजिशन के मुंह में बड़ा अच्छी, मेरा ख्याल है चॉकलेट की कैंडी आ गई है। अब ये मेरा ख्याल है कि क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकते कि जी ओहो गरीब आवाम पे ये बम तोड़ने जा रहे हैं, ये बजट पे बजट रिलीफ है। इससे वो जो छोटे शादी हॉल नहीं, उनका 5,000 टैक्स होगा, 2.5 लड़के वाले दे देंगे, 2.5 लड़की वाले दे देंगे। नॉन फाइलर्स 1300 सीसी तक की गाड़ी खरीद सकते हैं। उसके बाद आप ये देखें कि जो ज़रूरी टैक्स है के गिर तो घूमता है, कभी हम देखते हैं जी नॉन फाइलर ले सकता है, कभी देखते हैं नॉन फाइलर नहीं ले सकता। बिनेश मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। अच्छा, जो एग्रीकल्चर टैक्स है उसको 35% से 20% उसका जो इंटरेस्ट रेट है कम कर दिया गया है। इसी तरह SME के जितने कर्जे हैं उनसे उनको भी 35 से 20% कर दिया गया है। देखिए मेरी बात सुने, इस इस्लाहात की जरूरत अच्छा, मैं बताती हूँ ये अगर इस्लाहात और अगर किसी को रिलीफ अगर हर 2 महीने बाद भी दिया जा सकता हो तो क्या देना नहीं चाहिए? रिलीफ क्या अगले साल का इंतजार करना चाहिए? इसमें रिलीफ नहीं है। इसमें जो देखो इस मुल्क में होता क्या रहा है, इसमें होता ये रहा है कि जो अमीर तबका है सारी चीजें ऐसी होती रही हैं जिससे बेनिफिशरी वो होता था, राइट? और जो एक पिसा हुआ तबका है सारा बोझ उन पे डाला जाता था। लेकिन हम ये एक दफा में नहीं अगर कर सके तो हम ये चीज किस्तों में करने की ट्राई कर रहे हैं कि मतलब देखो ना, सेगमेंट वाइज वी आर ट्राइंग कि लोगों को रिलीफ मिले। और इसमें कम अज कम हमने ये तो नहीं किया ना कि जो अभी ये आपको पता है कि अनाउंसमेंट से पहले, और मुझे सबसे ज्यादा जो बात हंसी आ रही थी, मैं जब असद उमर साहब की स्पीच सुन रही थी उसमें पीछे से ऑपोजिशन शोर में जा रही थी। मुझे ये बताएं कि अगर टैक्स कम किया है उसमें शोर मचाना बनता है? मुझे ये बताएं कि अगर चाहे चलो 15,000 रुपया टैक्स छोटे जो शादी हॉल उन पे कम किया है, कुछ रिलीफ ही दिया है ना इसमें। नहीं, दिस इज नॉट व्हाट अबाउट 35% से 20% का होना। पैसे महंगा हो गया आप लोगों की ना एलएनजी की वजह से, बिकॉज़ आप लोगों ने एलएनजी के जो सिलेंडर्स हैं वो बर वक्त परचेज नहीं किए, बर वक्त उठाए नहीं। 57 पैसे जो बिजली महंगी हो गई उसका क्या?
देखो मेरी बात सुनो बिनिश, शादी पूरा का पूरा पाकिस्तान तो नहीं कर रहा ना हॉल्स में, पर बिजली हर पाकिस्तानी इस्तेमाल कर रहा है। एलएनजी जो के कर रहे हैं सिलेंडर्स हर उनको तो लोग रिलीफ मजबूर मिली है ना, इस्तेमाल और करने के जिन्होंने लिए। नहीं की उन्होंने बिनिश करनी है ना। आई विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट जिनकी नहीं हुई। बट पॉइंट ये है कि इसमें रिलीफ ही है चाहे छोटी है, मैं ये नहीं कह रही। नहीं नहीं, ये एक रिलीफ है जिसको आप पब्लिसाइज कर रही हैं। मैं जो टैक्स नेट भी तो थोड़ा बड़ा है ना। जो देखो जो लग्जरी गाड़ियां हैं, लग्जरी चीजों पे टैक्स बढ़ाना इज अ गुड थिंग, यानी कि जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है उसको उसके ऊपर टैक्स कम किया जाए, गरीबों पे टैक्स कम किया जाए, लेकिन जो उम्रा है उन पे टैक्स हमने टैक्स नेटवर्क को बढ़ाना ही पड़ेगा। कम किया गया है बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, अगर मुझे 5 मिनट दे दो बिनिश। मुझे एक ब्रेक लेना, 5 मिनट है ही नहीं पूरे प्रोग्राम में। 3 पार्टिसिपेंट्स और गलती से माशाल्लाह से तीनों की तीनों खवातीन। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक शॉर्टली। वेलकम बैक जी। बस एक चीज़ मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पूछना और उसके बाद मुझे ऑपोजिशन बेंचेस पे जाना वेरी क्विकली बिकॉज आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। मुसर्रत चीमा साहिबा, आप ऐसे ऐलानात, ऐसे बयानात पीटीआई देती क्यों हैं जिसको पूरा नहीं कर सकते? मतलब एक और यू टर्न आपने ले लिया है, वो है बसंत के ऊपर। आपने पहले अनाउंस किया कि हम तो बसंत मनाएंगे और इस दफ़ा तो हर हालत में बसंत मनाई जाएगी। किसने कहा था? सेनेटर सहर कामरान ने आके धरना दिया था कि रुमीना साहिबा ने आपको चिट्ठी लिखी थी कि भाई इस दफ़ा बसंत होनी चाहिए, नहीं तो आपकी खैर नहीं है। पहले आप अनाउंस कर देते हैं, अब पता चला है कि जी बसंत नहीं मनाई जा रही, तो आपने अनाउंस क्यों किया? नहीं, उसमें अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, सिर्फ इतनी बात हुई थी कि जो एक कमेटी बनी थी कल्चर कमेटी, राइट, उन्होंने अपनी ये कहते हैं सिफारिशात में ये कहा था कि बसंत एक हमारा बड़ा कलरफुल फेस्टिवल है, तो इसको प्लीज़ दोबारा, आपको पता है यूसुफ सलाउद्दीन साहब उसको वो करते हैं, तो ये कहा गया था कि हमारे जो थे इत्तलात के मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि इसमें मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से रिक्वेस्ट करूँगा कि बसंत होनी चाहिए, और ये वो ही वाज जस्ट सेइंग देम कि ठीक है हम इसको कंसिडर करेंगे, लेकिन ऑफिशियली या गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं की गई थी। उसकी वजह यह है कि फेस्टिवल तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रिवेंटिव्स के बगैर हम ऐसे खूनी खेल को तो नहीं अलाउ कर सकते। तो इसको अगर आप यू टर्न तो चलो इन अ गुड सेंस ये अच्छा यू टर्न है, अच्छा, अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। बस फिर बहस ही खत्म हो गई। सेनेटर सहर कामरान साहिबा, टैक्स ये लोग छोड़ रहे हैं, इस बात को आप अप्रिशिएट करें, हम अपने अच्छे यू टर्न्स को ऑन करते हैं। इस मिनी बजट के अंदर भाई अभी पीटीआई ने बताया, मुसर्रत साहिबा ने बताया हम टैक्स नहीं दे रहे, और इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट जो है वो ऑपोजिशन को हो रहा है। ऑपोजिशन इसीलिए चीखें मार रही है, गो नयाजी गो के नारे लग रहे हैं। टैक्स में बुरा क्या है इस वाले पैकेज में? छूट हुई है, ऐसा ही हुआ है सेनेटर साहिबा। इस पैकेज में बुराइयां पूछे जो आज करवा लें तो मैं बात कर सकती हूं। आई ट्राई माय बेस्ट। चलें सेनेटर, ऑलराइट मुसर्रत साहिबा, अब आप प्लीज ओके इनको प्लीज मुकम्मल करने दीजिएगा अपना मौक़िफ़। जी सेनेटर, थोड़ा सा तहम्मुल भी इन्हें सीखना चाहिए। देखिए, बजट के लिए मैं कहूँगी कि इट इज़ द बजट, मिनी बजट बाय द रिच फॉर द रिच, इट्स द मिनी रिच बजट, जिसको आप कह दें हेरा फेरी है सिर्फ। ये जो इनकी मुसलसल नाकामियाँ थी, और खातून आप खामोश रहिए प्लीज, थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा कीजिए। प्लीज उनको बोलने दीजिए। जी मेरे पास वक्त कम है, मुकम्मल करने दें। ये सिर्फ हेरा फेरी है। आज ही सुबह 57 पैसे बिजली के निर्ख में इजाफा हुआ है पर यूनिट, ठीक है। दवाइयों की कीमत चंद दिन पहले 15% जो है बढ़ा दी गई है, ठीक है। ये किस्तों के अंदर ये जो कहा था कि अगर हम कर्जा लेना पड़ा तो मैं खुदकुशी कर लूँगा, इमरान खान साहब ने वो भी यू टर्न खुदकुशी नहीं की, लेकिन कौम को तिल तिल मरने पे ज़रूर मजबूर कर दिया है। ये जो बात है कि नॉन फाइलर, मुझे लगता है कि ये नॉन फाइलर को इनकरेज कर रहे हैं और इनका टैक्स नेट बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। ये जिस किस्म की आज हालात पैदा हुए हैं, इन्होंने उनको जो अपनी नाकामियों पे नाकामियां नज़र आ रही थी, तो ये इन्होंने मिनी बजट का शोशा छोड़ दिया कि चलो चंद दिन ये बहस रहेगी। ये नाअहल है, इनके अंदर सलाहियत नहीं है डिलीवर करने की। इन्होंने मुल्क को एक फेल स्टेट की तरफ ले जा रहे हैं, और मुझे बड़ी तशवीश है कि देखिए बात यह है कि ऐसे इनके हाथ में झुंझुना आ गया है और इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि उसको बजाना कैसे है। तो बहुत मुझे जो है कंसर्न है, ये किस्तों में कीमतें बढ़ रही हैं। अगर आप ये देखें कि ये साल शुरू होने के साथ ही जिस तरीके से जो है रुपया डीवैल्यू हुआ, जिस तरह से कीमतों में इजाफा हुआ, इनके गलत फैसले की वजह से जो है बजाय ये कि एलएनजी के फर्नेस ऑयल से जो है बिजली प्रोड्यूस की गई, और उसका खमियाजा आज पाकिस्तान के अवाम भुगतेंगे। आप खुद सोच लें कि अगर बिजली की कीमत में इजाफा होता है तो हर चीज़ पे इजाफा होता है। इसी तरह